आज मैं उन बातों को बोलना चाहता हूं जो प्रभु पिछले कुछ दिनों से मुझसे बात कर रहा था। I want to share with you the things that God has been speaking to me in these past days. और ये जो बातें हैं जो मैं आज बताना चाह रहा हूं कि कई दिनों से प्रभु मुझे प्रोत्साहन कर रहे हैं। And the things that I'm sharing with you are the things that God has been encouraging me with. ये लोगों के नजर में बहुत कीमती नहीं है ये चीज जो मैं आज बोलने वाला हूं, लेकिन प्रभु की नजर में बहुत कीमती है। Maybe in the eyes of men it has no value, but in the eyes of God these are very precious and valuable. कई बार मैं सोचता था कि प्रभु मुझे सीएफसी में आने से पहले मेरी जो आगमन है, एंट्री है, 2 कलीसिया से हुई थी। Many times I think that God, before I entered CFC, I had entered 2 other churches. तो पहले चर्च है जब मेरा जब 17 साल का जवान था तब मेरा नया जन्म हुआ था, वो गांव की कलीसिया थी। When I was first church was when I was 17 years old, when I was born again. This was a church in my village. मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने मुझे उस जवान के समय में मुझे चुना कि उसके राज्य के लिए। I want to thank God that God chose me in my youth for His kingdom. जब मैं 2001 में बंबई शहर आया था, सिर्फ एक ही कलीसिया में मेरा 13 इयर्स मैंने उस कलीसिया में स्थिर था वहां पर। And in 2001 when I came to Mumbai for 13 years, I was firm in one church. मैंने देखा कि कलीसिया में जो प्रभु की वचन के अनुसार जो नहीं था, वो कई चीज उस कलीसिया में मैंने देखा। And in that church I saw many things which were not according to God's word. ना केवल उस मुंबई की उस कलीसिया में, मैं कई कलीसिया में जब कभी जाता हूँ गांव में, कई कलीसिया में ये चीज को मैंने देखा जो प्रभु के वचन के अनुसार बिल्कुल नहीं था। And not just in that church, but I saw in many other churches that there are things which are against God's word in those churches. आप सब जानते हैं सीएफसी हमारा परिवार है। All of you know that CFC is like a family. और इस परिवार में कुछ चीज इतना खास नहीं है। And this family is not anything special. बट ये चर्च मजबूत चर्च है। But this church is a firm and strong church. जो चीज कीमती नहीं है, वैल्यू नहीं, क्या है इधर? What is that thing which may not be of value here? आपने देखा होगा इस चर्च में ऑफरिंग बॉक्स कभी आगे नहीं रहेगा। One thing is that the offering box is never kept in front here in this church. ये चीज मुझे हमेशा मुझे जागृत करती है कि लेकिन कई कलीसियाओं में देखता हूँ उनकी पहली स्थान में दान पेटी का जगह वो होता है, वो पहले स्थान में होती है। And this thing awakens me and excites me, but because in other churches I see that the offering box is given the first place, in the front place in the church. उनकी बेड़ों की कोई चरवाहा नहीं है, या उनकी बेड़ों की कोई रखवाला जरूरत नहीं है, या उनके उद्धार की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन उनकी कलीसिया की मेन मुख्य उद्देश्य यह था कि उसकी ऑफरिंग बॉक्स सबसे पहले आगे रहना चाहिए। Whether there is a shepherd, whether the sheep have no shepherd, or whether there is no one to take care of the sheep, that doesn't matter, but the main thing and the most important thing is the offering box, and that is kept right in front of the church. कलीसिया के भाई बहन कैसा भी जाए या कैसा भी जिए, उसके ऊपर कोई उनको ध्यान नहीं रहेगा, लेकिन उनकी मेन मकसद है विश्वासियों का जब तनख्वाह आता है महीने के एंडिंग में, उसके ऊपर ज्यादा जोर दिया जाता है। It doesn't matter, they don't bother about how the brothers and sisters live in that church, what they do, but at the end of the month when the salary is given, the people have to pay their offering in the church. वो जानते हैं कि कलीसिया में महीने के एंड में हर एक भाई बहन जो नौकरी करते हैं उनको तनख्वाह बराबर समय पर मिलता है, और पहले हफ्ते में उसकी तनख्वाह का 10वां हिस्सा उसकी ऑफरिंग में आ जाती है। And they know that all the believers in that church who are working, they get their salary on time at the end of the month. So by the first week of the month, the offering comes into the offering box. So कलीसिया की प्राचीन या कोई पास्टर कहते हैं कि आपकी सारा चीज प्रभु को 10वां हिस्सा के रूप में दे दो। And the pastors or the elders in that church will tell that all the things that you have, the 10th, a tithe of it, you have to put it inside the offering box. So मैं किसी को भी मैं न्याय नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन जो बाइबल वचन के अनुसार जो था वो आज मैं बताना चाहता हूँ।
I don't want to judge any one of them, but I want to speak according to God's word today. आइए हम मार्क चैप्टर 12वां अध्याय 41 से लेकर 44 तक हम पढ़ेंगे। Let's turn to Mark chapter 12, verse 44. मार्क चैप्टर, मैं चाहता हूं सारे लोग बाइबल को ले। मार्क चैप्टर 12वां अध्याय 41 से लेकर 44 तक किरण पढ़े। All of us can turn. I request all of us to open a Bible to Mark 12, verse 41 to 44. Brother. मंदिर के भंडारे के सामने बैठकर देख रहा था कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार का पैसा डालते हैं, और बहुत से धनवानों ने बहुत कुछ डाला। इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर 2 दमड़ियों को, जो अधेले के बराबर होती है, डाली। तब उन्होंने अपने चेलों को पास बुलाकर उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि सब ने अपने धन की बढ़ती में से डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से जो कुछ उसका था, अर्थात अपनी सारी जीविका डाल दी है। सो हम देखते हैं कि यहाँ पर एक कंगाल विधवा थी। इन्हें एक विधवा के पास सबसे पहले उसकी कमाई नहीं होती, उसकी जो आदमी है वो गुजर चुका है, उसके पास कोई कमी नहीं होगी, कमाई नहीं होगी। Here we see a poor widow. Actually, a widow can't make any earning because her husband is no more. So she has actually no livelihood and no लेकिन earning. उनके अंदर एक इच्छा थी, प्रभु की मंदिर में जाने की एक इच्छा थी। But she had a desire to go to be in God's temple. आज संसार में कई लोगों को पूछेंगे, किसी को भी बोलेंगे चर्च में आओगे? If today you were to ask anyone, do you want to come to church? कोई भी नहीं कहेगा कि मुझे इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन सब लोग गॉड के पास आना चाहते हैं। And many people may not say no, I don't want to come, because everyone has an interest to come to God. वो जानता है कि जब गॉड के पास जाए गॉड हमें ब्लेस करेगा। They understand that when we come to God, that God will bless us. तो उसी तरह इस औरत के अंदर, ये विधवा थी लेकिन इसके पास कुछ चीज नहीं था, लेकिन वो उसके अंदर एक डिजायर थी, मैं परमेश्वर के मंदिर में जाऊंगा। Same thing, this widow, she had nothing, she had no money, but in her heart there was a desire that she wanted to come to God's उन temple. दिनों में पता है फरीसी लोग 10वां हिस्सा बराबर देते थे प्रभु को। And in those days, the Pharisees used to give their tithe promptly to God. और वो लोग उपवास बराबर करते थे। And they used to keep their fast regularly. इसलिए हम लूक चैप्टर में हम 18वां हम देखेंगे कि फरीसी चुंगी लेने वाला का एक दृष्टांत देखते हैं। दोनों प्रार्थना करने के लिए वहां पर जाते हैं। And we see that story in about the Pharisee and the tax collector. और वहां पर एक फरीसी कहता है कि प्रभु मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे 10वां हिस्सा देने के लिए अगुवाई किया, मुझे उपवास करने के लिए अपने मजबूत, इन सारी बहुत सारे बात करते रहते हैं वो। And both the tax collector and the Pharisee are praying in the temple, and the Pharisee prays that God, thank you that I'm giving that you I'm able to give my tithe and keep my fast, and he tells a lot of things about himself. यानी वो लोग परमेश्वर के मंदिर में जब आते हैं वो खाली हाथ नहीं आते हैं, वो 10वां हिस्सा लेकर आते हैं। When they come to the temple, they don't come empty-handed; they come with their tithe in their hands. और उन चीज को लेकर वो लोग घमंड करते थे, हम प्रभु को 10वां हिस्सा देते थे और उपवास भी वैसे ही करते थे, इसलिए वो लोग कहते थे कि हम उपवास भी हफ्ता में करते थे। And that giving the tithe had become a reason for them to become proud, and also they used to keep their fast regularly, and that also was something which made them proud. लेकिन जब ये विधवा औरत आई थी, उसने देखा कि ये लोग अपना अपना 10वां हिस्सा दे रहे हैं या जो कुछ उसमें से कुछ निकाल के दे रहे हैं। And when the widow came and she saw that the Pharisees were giving their tithe and whatever they had, they were giving. और बहुत सारे धनवान भी वहां पर आए थे, उनमें उनके पास जो कुछ भी था उसमें से कुछ निकालकर उस दान की पेटी में डालते थे। And the rich people also had come, and out of the riches they were taking some of it and giving in the offering box. और यीशु ने उनको कभी भी कंडेम नहीं किया, जो धनवान अपने पास जो था वो उसमें से कुछ निकाल कर डाल रहा, उसको कभी कंडेम नहीं किया था उसको। And Jesus never condemned these rich people who were giving out of their riches. और उसको ना विधवा की कंडेम नहीं किया। And he didn't condemn the widow also. लेकिन वो ये कहता है कि सबसे ज्यादा इस विधवा ने डाली। But Jesus said that the widow had put in the most into the offering box. क्या थी? आप लोग कहेंगे कि सिर्फ 2 जो दमड़िया, यानी पुराना जमाने में औरत स्त्रियों को देखेंगे वो सिर्फ एक कपड़े में 2 सिक्के बांध के अपनी जीविका के लिए रखते थे वो लोग।
Just two very small coins. It says 2 mites. In the olden times, they used to keep the small coins in the fold उनका of वो the जीविका clothes. ही है उसका, And that is their whole और livelihood. उनके नजर में वो 2 दमड़ियां बहुत कीमती है। And that in their eyes, those 2 coins are very, very precious. लेकिन जब उसने अपनी दमड़िया उस दान की पेटी में डाला, तब तुरंत यीशु ने अपने चेलों को बुलाकर कहा, सबसे ज्यादा इस कंगाल विधवा ने डाली। And when she took those 2 coins and put it into the offering box, Jesus called his disciples and said that this lady had given the most into the So offering मार्क box. चैप्टर 12:41 में लिखा है कि भंडार में किस प्रकार पैसा डालते हैं, इस चीज को प्रभु यीशु ने ध्यान दिया। In Mark 12:41, it says that Jesus saw the way they were giving their offering into the offering याद रखो, box. किस प्रकार वो लोग अपना पैसा डालते हैं, In the manner in which they were putting their money into the offering box. कितना डालते हैं उसके ऊपर प्रभु को ध्यान नहीं है। Not how much they giving, that was not what God was looking at. फरीसी जानते हैं कि 10वां हिस्सा प्रभु का है, The Pharisees knew that their tithe belongs to God. बाकी 90% उनका है। The rest of the 90% is theirs. अगर मैं 10% प्रभु को नहीं देंगे, प्रभु मेरा 90% उड़ा देगा या कुछ नाश कर देगा, श्राप देगा, इसी बाई के कारण वो लोग 10वां हिस्सा देते थे वहां पर। They knew that if we don't give that 1/10 to God, the 9/10 that they have, God will destroy it or bring some loss upon them. So out of fear, they would give their 1/10 portion क्या to God. आज भी आप लोग बाई के साथ वो काम करते हैं जो फरीसी लोग करते थे? Do you nowadays also do it out of fear, like the way the Pharisees did out of fear? आपको लगता है कि पिता आज भी वही परमेश्वर है जो अगर उसकी आज्ञा के अनुसार नहीं चलेगा तो तुरंत दंड देने वाला है? That if today we don't follow God's laws, that immediately God is going to punish us. मैं बताना चाहता हूँ पिता वैसा नहीं है, पिता परमेश्वर दयालु पिता है। God our Father is not like that. God our Father is a God of mercy and grace. वो क्रोध से भरे नहीं है, वो प्रेम से भरे हैं। He's not filled with anger, but he's filled with love. वो आप नहीं देंगे तो आपको कुछ ले लेगा, इस तरह से नहीं है। आप नहीं देंगे तो वो बहुत हैप्पी है। It's not that if you don't give, he will take away something from you. But if you don't give, he is still happy, very happy with you. लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप कितना देते हैं उसके ऊपर उसकी ध्यान है, लेकिन किस तरह आप देते हो उसके ऊपर उसकी ध्यान है। So God is not bothered about how much you give, but God is bothered how you give. जुनी करार में एक दृष्टांत मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। In the old covenant story, I want to put in front of you. जेनेसिस चैप्टर 4, Genesis chapter 4. वहां पर कैन और हेबिल के बारे में लिखा गया है। It's the story about Cain and Abel. हम देखेंगे जेनेसिस चैप्टर 4 वर्स 3। Genesis 4 verse 3. कुछ दिनों के पश्चात केन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट में ले आया। और हाबिल भी अपने भेड़ बकरियों में के कई एक पहलोटे बच्चे भेंट चढ़ाने के लिए ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु केन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया। बस। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एडम और हव्वा की जो 2 बच्चे थे, जो पहले तो बहुत केन और हबील के बारे में लिखा है, और सबसे पहले जो अर्पण के बारे में यहाँ पर मेंशन किया गया है। Here we see about Adam and Eve's children, first 2 children, Cain and Abel, and here it talks about the first offering that was made. और दोनों ने परमेश्वर के पास कुछ भेंट लाया, And both of them brought something to God. परमेश्वर उस भेंट से कोई नाराज नहीं थे। And God was not upset with anything with what they brought. लेकिन जिन्होंने भेंट लाया उनकी दिल से वो बहुत नाराज थे। But the people who brought the offering, with their heart, God was upset. मैं आप कहेंगे ब्रदर आप प्रभु के लिए कुछ काम करेगा, आप जरूर जोश में आके कहेगा प्रभु मैं जरूर कर लूंगा। If I were to come to you and ask, brother, will you do something for God, in that excitement, and you will say yes, definitely I will do this for कोई God. भी यहाँ बेटा व कोई भी बहन ना नहीं बोलेगा प्रभु का काम अगर मैं कुछ दिया तो। Nobody sitting here will ever say no for God's work. आप तुरंत आप रिएक्ट करेगा और तुरंत उठ के वो काम करेगा। Immediately you will react and immediately you will do that work. क्योंकि आप चाहता है कि परमेश्वर मुझे आशीषित करे।
because you want that God would bless you. आप जानते हैं कैन और हेबिल के बेट में एक जन को आशीष पाना हम देखते हैं इस पर। In Cain and Abel's offering, we saw that one person received a blessing. कारण क्यों? And the reason, उसकी रीजन इब्रूज चैप्टर 11 it's the reason is in Hebrews chapter 11, वर्स 4 में लिखा है। verse 4. इब्रूज चैप्टर 11 वर्स 4। Hebrews 11, verse 4. विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसके द्वारा धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंट के विषय में गवाही दी और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। थैंक यू। ओके ब्रदर। सो यहाँ पर हेबिल के बारे में परमेश्वर खुद गवाही देते हैं। Here about Abel, God himself gives a testimony. वो उत्तम बलिदान, उत्तम अर्पण क्यों कलीसिया में लाया, उत्तम अर्पण क्यों परमेश्वर को दिया है? Why did he give a more excellent sacrifice to God? उसका कारण है विश्वास के कारण। And the reason for that is faith. कई बार हम कैन की तरह बचा हुआ लाएंगे या किसी को देने से अच्छा कलीसिया को दे देंगे, इस तरह से सोच के हम लाते हैं, लेकिन वो उत्तम बलिदान नहीं होते। Sometimes we give an offering to God, which is like out of our leftovers, or we think that instead of giving to someone else, let us give it to the church. That is not an excellent offering. तो परमेश्वर कोई भी चीज एक्सेप्ट कर लेते हैं, हम लोग कोई भी चीज दे देंगे, चल जाएगा। God will accept anything, no matter what we give, it is okay with God. ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, कैन और हेबिल से हम सीख सकते हैं कि विश्वास के कारण उसने क्या लाया है, उत्तम बलिदान परमेश्वर के सामने लाया है। Here, brothers and sisters, from the life of Cain and Abel, we can see that because of faith, Abel brought a more excellent sacrifice. अभी आप उत्तम बलिदान प्रभु को क्या दे सकते हैं? Now, what is the most excellent sacrifice that you can give to God? आप कहेंगे ब्रदर मेरे को कैन की तरह देने के लिए मेरे पास इतना पैसा नहीं है, नहीं तो कुछ अच्छा भेड़ बकरी नहीं है, तो उत्तम क्या दे सकता मैं? You can say, brother, like Abel, I can't give I don't have money to give so many things like sheep and goats. What is the excellent sacrifice that I can give? Romans chapter 12, 1 and 2. 1 and 2. मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान कर कर चढ़ाओ, यह तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारे चाल चलन में बदलाव आ जाए। यहाँ पर पौलुस कहता है कि हम इस जमाने में प्रभु को क्या उत्तम चीज अर्पण कर सकते हैं हम लोग। In this passage, Paul says, what is in this day and age, what is the excellent sacrifice that we can give to God? प्रभु आपकी पैसा नहीं चाहता है क्योंकि प्रभु गरीब नहीं है। God doesn't need your money because God is not poor. और ऑफरिंग बॉक्स मुख्य प्लेस में नहीं, अति पवित्र स्थान में नहीं है, ऑफरिंग बॉक्स एकदम पीछे है। Offering box is not in the most holy place. Offering box is right at the end. लेकिन प्रभु क्या चाहता है कि उससे भी ज्यादा बढ़कर आप क्या दे सकते हो? What is something more beyond that? तुम्हारा बॉडी, तुम्हारा शरीर को उत्तम बलिदान करके चढ़ाओ। Your body should be given to God as a living sacrifice. संडे सुबह आप चर्च में जाने गए, 10:30 बजे चर्च है, फिर भी आप 10 बजे तक बेड पे है, क्या उस शरीर को आप बलिदान के रूप में चढ़ा रहे हो? Sunday morning 10:30 is church, until 10 o'clock you're still in bed. Is that excellent sacrifice? संडे चर्च में आना चाहते हो, लेकिन कोई मेहमान आ जाते हैं, मेहमान के कारण हम लोग उनके साथ घर पे बैठने समय बिताने के लिए कोशिश करते हैं, क्या ये उत्तम बलिदान है? Sunday morning you want to come to church, but you have guests Sunday morning, and so you sit and spend time with them. Is that an excellent sacrifice? मैं किसी को भी न्याय नहीं करना हूँ, मेहमान आते हैं या घर में काम रहते हैं, आप थक जाते हैं, सोते हैं, लेकिन उत्तम बलिदान प्रभु के लिए आपको हमेशा अर्पण करना होगा। I'm not here to judge anyone. Yes, guests can come. Sometimes you're work too much and you're tired and you need to rest. But we need to give the most excellent sacrifice that we can give to God. जो मैं काम करता हूँ वो टेक्निकल फील्ड का काम है।
The work that I do is in the technical field. सोमवार से शनिवार तक जितना मैं कमाता हूँ उससे ज्यादा दुगना मैं रविवार का दिन कमा सकता हूँ। The amount of money that I can make from Monday to Saturday, I can make double of that if I work on a Sunday. संडे के दिन अगर मैं फोन सुबह 6 बजे चालू रखूंगा, शाम तक मुझे कॉल्स आता रहते हैं कि भाई आप आओ मेरे पास काम करो, मैं आपको दुगना पैसा दूं। इस तरह से लोग सुबह से शाम तक मुझे अपॉइंटमेंट्स के लिए इंतजार करते हैं। So if I keep my phone on from morning 4 o'clock to evening 6 o'clock, I'll be getting continuous calls. Come and please come and do this work for us. I can get continuous calls. मैं यही कहता हूँ, सबसे पहले मुझे चर्च में जाने दो। But for me, I say that first of all, I need to go to church. पहले चीज मुझे प्रभु की उपस्थिति में बैठने के है। First thing is that I need to sit in God's presence. पहले चीज मुझे प्रभु का वचन सुनना है। And the most important thing is that I need to listen to God's word. ये सिर्फ ना केवल रविवार का दिन की बात नहीं कर रहा, मैं हर दिन यही करना है। And it's not just on a Sunday, but every day this is what I'm supposed to do. तो अगर आप दुगना पैसा रविवार का दिन ज्यादा कमाते बाकी दिनों से, if you can earn double the amount of money on a Sunday as compared to other days, तो आपके लिए अभी महत्व क्या बन जाएगा? So what is the thing which is important to you? तो मैंने निर्णय हमेशा करता हूं कि सबसे पहले मैं काम पे जाऊंगा क्योंकि वो मेरा जीविका ही है, लेकिन कभी जाऊंगा मेरा चर्च की मीटिंग पूरी तरह खत्म होने के बाद मैं जाऊंगा। Yes, I will go for work, but when will I go? When I finished my church meeting completely. जब कोई मेहमान रविवार के दिन मेरे घर पे आते हैं, मैं उनको स्वागत करता हूँ, लेकिन उनको ये निवेदन करता हूँ मेरे साथ कलीसिया में चलो पहले। Yes, guests can come to my home on a Sunday, but I will invite them and ask them to come with me to church. अगर आप आना नहीं चाहते हो, आप अकेला घर में रहना होगा, खाना पीना कुछ नहीं रहेगा, आप मेरे साथ आएगा, सब कुछ वहां मिलेगा। If you don't want to come to church, you can stay at home alone. There'll be nothing will be served to you. But if you come to church, everything will be served to you. तो मेहमान सोचेंगे कि अकेले रहेगा तो मुझे खुद पकाना पड़ेगा, कौन सा चीज क्या है कहाँ पर है मुझे पता नहीं, उससे अच्छा बेहतर उनके साथ जाऊंगा तो कम से कम वहां पर वचन भी मिलेगा, खाना भी मिलेगा। So the guests may think like if I stay at home alone, I will not know where the things are and how to cook food in this place. It's better I go with them to church. I'll get So brothers, मैं food. आपको प्रोत्साहन करना चाहता हूँ brothers, परमेश्वर को एक पहले चीज हमेशा पहले दे दो आप। Brothers and sisters, I want to encourage you that you must give God the first in everything. आपकी समय पहले प्रभु को दे दो। Give your time first to God. आपकी प्रेम, लोगों से आप प्रेम करना चाहते हैं या प्रेम करने की इच्छा है, आप सोचो मत कल का दिन करूंगा या परसों का दिन करूंगा, जब आपके पास मौका है कर दो उसको। In loving others, don't think I'll do tomorrow or day after, but when there is time, you do it. So कैन और हेबिल से हम ये सीख सकते हैं कि उत्तम बलिदान हमेशा परमेश्वर स्वीकार करते हैं। From Cain and Abel, we can hear that, we can learn that God will always accept the most excellent sacrifice. 2 Corinthians 8:1 में पौलुस कुछ वचन के द्वारा हमें प्रोत्साहन करते हैं। 2 Corinthians 8:1 In 2 Corinthians 8:1, Paul encourages us with another verse. ये यहाँ पर एक जगह है मासिदोनिया, यहाँ पर दो कलीसिया है, एक है फिलिपियंस, दूसरा है थेसलोनियन। There's one place called Macedonia, and this place there are two churches. One is Philippian church and the Thessalonian church. और वहां पर कलीसिया के लोगों को देखकर पौलुस के अंदर एक उत्साहित आ जाता है कि मेरा उम्मीद से भी ज्यादा ये लोग को देखा मैंने। When Paul sees those people, those believers in these two churches, Paul is very much encouraged and says that I'm seeing them more than what I expected. 2 Corinthians 8:5 2 Corinthians 8:5 और जैसा हमने आशा की थी वैसा ही नहीं, वरन उन्होंने प्रभु को फिर परमेश्वर की इच्छा से हमको भी अपने आप को दे दिया। वो क्या कहता है कि जो आशा पौलुस उस मासिदोनिया की कलीसिया से रखा था विश्वासियों से, उससे बढ़कर वो लोग ने दिखाया उसको विश्वास योग्यता। Here Paul says that that the expectations that he had of the believers in the Macedonian churches, these believers had exceeded that expectations of Paul. ब्रदर्स एंड सिस्टर, मासिदोनिया की जो कलीसिया, दो कलीसिया थे, एक फिलिपियन थेसलोनियन, बहुत गरीब विश्वासी थे वहां पर। Brothers and sisters, in Macedonia there were two churches, the Philippian and Thessalonian church, and the believers there were very poor. लेकिन वो पौलुस को उदारते से देने के लिए तैयार थे वो लोग।
but they were giving to Paul generously. पौलुस कभी भी नहीं कहा कि आप ये दो वो दो 10वां, ऐसा कभी भी नहीं कहा, लेकिन वो लोग निवेदन किया कि हमें अनुमति दे आपको देने के लिए। Paul never told them give your tithes, give your offering, but they requested Paul, please let us इसलिए वचन give. 5 में लिखा है कि मेरी उम्मीद से भी ज्यादा मैंने विश्वास योग्यता इन मासिदोनिया की कलीसिया में मैंने देखा। That's why Paul writes in verse 5 that more than what I had expected, I've seen their faith. और प्रभु के अनुग्रह के कारण वो लोग ने दे पाया इस। And they were able to give because of God's grace. मैं चाहता हूं कि आपका गरीबीपन या आपका कमीपन, इन सारी चीज परमेश्वर को कोई वैल्यूबल नहीं है, लेकिन परमेश्वर चाहता है आपका दिल प्रभु के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। Your poverty or your lack of things doesn't matter to God, but God sees your heart, how much you are willing to give. इसलिए मार्क चैप्टर में लिखा है कि कितना वो दे उसके ऊपर ध्यान नहीं है। So in Mark chapter 4 it says how much they give, that was not important. किस तरह आप निकाल के दे रहे उसके ऊपर ध्यान है। But how you are taking out of your pocket and giving, that is परमेश्वर important. आपके दिल की हालत को देखकर बहुत खुश होता है। Because God sees the condition of your heart and is very happy. मैंने कहा कि लूक चैप्टर में फारिसी और चुंगी लेने वाला का में सिर्फ एक ही प्रार्थना का स्वीकार करना हम देखते हैं। So in the parable about the Pharisee and the tax collector, there was only one prayer that was accepted. क्यों? You know why? क्यों चुंगी लेने वाला का प्रार्थना प्रभु ने एक्सेप्ट किया है? Do you know why God accepted the prayer of the tax collector? क्योंकि उसने जाना कि उसकी हालत क्या है और उसकी जरूरत क्या है, मंदिर में उसकी कंडीशन क्या है, लेकिन फरीसी ने उस तरह से नहीं जाना उसकी हालत को। Because the tax collector was able to acknowledge his condition or his need or his condition in God's presence. वो प्रभु के सामने आके गिड़गिड़ा रहा था, छाती पीट रहा था और रो रहा था, बोल रहा था कि प्रभु मुझ पर करुणा कर, कृपा कर। In God's presence, the tax collector was begging and was pleading in front of God, God, please have mercy on me. लेकिन अदर पर्सन फरीसी कहता है कि मैं इनकी तरह नहीं हूँ, मैं 10वां हिस्सा बराबर दे रहा हूँ, मैं हफ्ता में उपवास कर रहा हूँ, मैं सब कुछ कर रहा हूँ, आपकी धार्मिकता के राज्य में चल रहा हूँ, मैं चर्च में बराबर आ रहा हूँ, बाइबल बराबर पढ़ रहा हूँ, सब कुछ मैं बराबर कर रहा हूँ, लेकिन क्या चीज कमी थी उसके अंदर? The Pharisee, on the other hand, was saying, God, I'm not like this tax collector. I give my tithes, I keep my fast, I give my offering, I obey all your commandments. But what was lacking for the Pharisee? एक पापी को हृदय से प्रार्थना तुरंत परमेश्वर के पास जाना हम देखते हैं। The prayer from a sinner's heart was immediately accepted by God. कोई रुकावट नहीं है उस प्रार्थना प्रभु के पास जाने के लिए। There was nothing stopping the prayer from going to God. ब्रदर्स, अगर आप चाहेंगे प्रभु मैं एक पापी हूँ, brothers, if you say that, yeah, if you acknowledge that yes, I am a sinner, अगर आपको उम्मीद है कि प्रभु मेरे पापी की प्रार्थना तुरंत सुनता है, and if you believe that God will listen to the prayer of a sinner, और मेरी और परमेश्वर के बीच में कोई रुकावट नहीं रहेगा जब मैं अपने पापों को कबूल किया तो, and between God and us there'll be no hindrance when we accept that we are a sinner. और मेरी प्रार्थना प्रभु के पास जाने के लिए घंटों घंटा प्रार्थना करने की जरूरत नहीं, सिर्फ 2 सेकंड की प्रार्थना पिता की उपस्थिति में पहुंच जाती है। And we to be in God's presence, we don't need to pray for hours together. In just 2 seconds we can be in God's presence. लेकिन वहां पर फरीसी बहुत समय तक प्रार्थना करते हैं, लेकिन उसकी प्रार्थना और परमेश्वर के बीच में जाने के लिए बहुत रुकावट आई, गई नहीं है, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। We see the Pharisee was praying for a long time, but his prayer never reached God. There was a lot of hindrance. Proverbs 11:24. Proverbs 11:24. ऐसा है जो छितारा देता है तो भी उनकी बढ़ती ही होती है, और ऐसे भी है जो यथार्थ से कम देते हैं और यह उनके घटती ही होती है। यहाँ पर एक नियम लिखा गया है, Here there is a commandment which is given. जो बहुत से देते हैं उनको बढ़ोतरी होती रहती है, लेकिन जो देना चाहते हैं उसमें से देते भी नहीं है, वो लोग दरिद्र होते जाते हैं। वो लोग The one who scatters, the one who is scattering,
his belongings keep increasing, but the one who doesn't want to give and keeps holding on to his things, he keeps on becoming poor and reaching in poverty. सो ये नियम को हम लोग हमेशा गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि प्रभु की उपस्थिति में जब मैं जाता हूँ, सबसे पहले मेरा समय या मेरा प्रेम या मेरी सेवा, इन सारी चीजों से भी बहुत महत्वपूर्ण है मेरा दिल। So when we come in God's presence, we should remember this rule that more than our time or our service, what is more important is our heart. संडे के दिन जब मैं रविवार कलीसिया में आता हूँ, उसी दिन मेरा घर में सबसे ज्यादा काम रहते हैं। The Sunday morning when I need to come to church, that day only there'll be a lot of work at home. उसी दिन आपको पानी भरना होता है या कपड़ा धोना होता है, नहाना होता है, बहुत कुछ करना होता है। लेकिन आप मेरे से पूछेंगे आप सबसे पहले कलीसिया में क्यों हैं? क्योंकि वो सारा चीज मुझे प्रभु के बाद ही है। So there'll be things like I have to fill the water, I have to wash the clothes, but I leave everything and come to church. Why? And you may ask me why? Because the reason is that more than all those things, what is more important is to be in God's presence. Brothers and sisters, पहली शताब्दी को आप मसीह को देखेंगे, वो लोग प्रभु को पहले स्थान हमेशा देते गया है। Brothers and sisters, in the first century church, we see that the believers always gave their first place to God. वो प्रभु को कलीसिया में जाना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण समझे थे। They considered that being in God's presence was the वो प्रभु most की सेवा important. करना सबसे पहले अपने घर से ज्यादा भी महत्वपूर्ण समझते थे। That serving God was more important than anything वो else. प्रभु को भेंट देने सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और दिल से जानते थे। To give to God was more important, and they knew it from them by their heart. आज क्यों नहीं हमारे जीवन में ऐसा? Why is it not like that in our lives? क्या हम परमेश्वर की प्रेम से ठंडा हो गया क्या? Has our love for God become cold? रेवलेशन किताब में लिखा है कि अगर आपकी प्रेम क्यों कम हो गया, वहां पर लिखा है कि जहां से आप गिर गए हैं वहां पर वापस खड़े होने के लिए कहता है। In Revelation, we see that why has your love become cold? So it says that come back to your first love. सदोपदेश 11:1-2 में लिखा है एक अच्छा प्रोत्साहन का वचन। Ecclesiastes 11 verse 1 and 2 and 3 किरण। verse 1 and 2 and 3. रोटी जल के ऊपर डाल दे, क्योंकि बहुत दिन के बाद तू उसे फिर पाएगा। 7 वर्ष 8 जलों को भी भाग दे, क्योंकि तू नहीं जानता कि पृथ्वी पर क्या विपत्ति आ पड़ेगी। यदि बादल जल भरे तब उसको भूमि पर अंधेर देते हैं, और वृक्ष चाहे दक्षिण की ओर गिरे या उत्तर की ओर, तो जिस स्थान पर वृक्ष गिरेगा वहीं पड़ा रहेगा। ये वचन आपने ध्यान दिया है? अपनी रोटी को पानी पर डालने के लिए कहता है। ऐसा कौन सा मूर्ख विश्वासी है जो अपना पेट भरने वाले खाने को पानी पर डालते हैं? Here it says that cast your bread upon the water. Who will be so foolish to throw that food that we eat ऐसा into the कौन सा water? विधवा है जिसके पास 2 सिक्के हैं और वो 2 सिक्के के बिना अगला दिन उसको खाना नहीं मिलेगी, लेकिन वो कितना मूर्ख होगा कि 2 सिक्के उसके अंदर डाल दिया। How can a widow be so foolish that with those 2 coins, which is all her livelihood, and if she gives it away, she will not be able to buy food the next day, but she gave it to God. किस तरह की अर्पण है जो परमेश्वर उसको योग्य बलिदान कहा और एक्सेप्टेबल बलिदान कहा उसको? What kind of offering is this where God says it is most excellent and most pleasing? बहुतों से कुछ निकाल कर दिया है। Most of them had given out of the riches. परमेश्वर को आप कितना देते हैं उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं, लेकिन आप अपने लिए कितना रखते हो वो भी देखते हैं परमेश्वर। God doesn't see how much you're given, but God is also mindful of how much you've kept for yourself. विधवा औरत ने अपने लिए कुछ नहीं रखी यहाँ पर। Here the widow hadn't kept anything for herself. मैं नहीं कहता हूँ कि आपको सब कुछ आके प्रभु को दे दो, वो मूर्खता होगा। I am not saying that come and give everything to God. That would be लेकिन इस foolishness. विधवा औरत ने जो किया है वो हम सब के लिए एक प्रोत्साहनजनक वचन है। But the thing that this widow had done is something which can encourage each one of us. मैं आशा रखता हूँ ये वचन आपको बहुत प्रोत्साहन दिया है। I pray that this word has encouraged each one of you. लूक चैप्टर 6:38 आखिरी में मैं बताना चाहता हूँ। Last verse, Luke 6:38.
यहाँ पर एक छोटा सा नियम है जो हम पाने के लिए है। लूक चैप्टर 6 वर्स 38। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, लोग पूरा नाप नाप कर, दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभारते हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। यहाँ पर लिखा है कि दो तुम्हें किया जाएगा, दिया जाएगा, है ना? जब आप परमेश्वर को देते हैं, Here it says that give and then you will also receive. That means when you give to God, है ना? यहाँ पर और क्लियरली लिखा है कि आपको पाने के लिए किसी के पास हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। that if you want something, you don't need to put your hand in front of anybody else. कोई भाई बहन के पास जाकर ये दो बोलने की जरूरत नहीं है। आप प्रभु को दो, प्रभु आपको सही समय पर प्रोवाइड करेगा। You don't need to go to any brothers and sisters and ask them give. But it says if you give to God in the right time, God will give back to इसलिए you. सबोपदेशक किताब में 11वां में लिखा है कि अपने खाना पानी पे डालो। That's why in Ecclesiastes 11 it says put your bread on the water. क्या होएगा जब अपना खाना पानी पर डालते, क्या होता है? और लोगों के पास वो खाना फैलती है। Then what happens then that your bread will flow to many more people. और आगे लिखा है कि जब आप इस तरह से करेगा, जब आपके पास जरूरत है, वो लोग आपको क्या करेगा? आपकी जरूरत को पूरा करेगा। When you do this and help others in need, when you're in need, you will also be helped. मैं नहीं बोल रहा कि दूसरों की मदद मुझे एक दिन मिलेगा, उसके लिए मैं आज करना चाहता हूँ, उस तरह से मकसद आप दिल में मत रखो। Don't do it like when I'm in need and other people will help me. Don't keep that as your motive. या अगर आपके पास बहुत है, देने के लिए आपको प्रोत्साहन मिल रहे, उनको उदारता से दो। If you have lots and if you feel encouraged to give, then you give generously. पहले शताब्दी विश्वासियों को देखेंगे, उनके पास जो भी संपत्ति थी, गरीबों को बांट दिया उन्होंने। In the first century church, the believers gave all of their inheritance also. कारण था उनके अंदर प्रेम था उनके प्रति। Because the reason for this was their hearts were filled with love. प्रभु के प्रति प्रेम था उनको। They loved God so much. अगर आप प्रभु के प्रति प्रेमी बनेगा, आप लोगों को भी देगा, प्रभु को भी देगा, आप सब कुछ करेगा। If you were filled with that kind of love, you would give to people and you give to God also. Praise the Lord. प्रभु का धन्यवाद करते बहुत एनकरेजिंग वचन के लिए। I want to thank God for this encouraging word. हमने सुना कि परमेश्वर को उत्तम चीज देने के विषय में। We had heard about giving the best to God. और भाई ने जैसा कहा कि कुछ लोग बहुत जो हम सोचते हैं अरे किसी को नहीं दे सकते, चलो प्रभु को दे दे। And we also heard that how sometimes we think we can't give this to anyone else. Let's give this to God. तो देखो यहाँ पर मलाकी अध्याय 1 में लिखा हुआ है। Here we see in Malachi chapter 1. उसके 8वां वचन में ऐसा लिखा हुआ है। In his verse 8 it says, जब तुम अंधे पशु को बलि करने के लिए समीप ले आते हो तो क्या वो बुरा नहीं? And when you offer the blind as a sacrifice, is it not evil? उसके आगे लिखा है क्या तुम लंगड़े या रोगी पशु को ले आते हो तो क्या वो बुरा नहीं? And when you offer the lame and sick, is it not evil? वो कहता है आप अपने हाकिम के पास ऐसे भेंट ले जाओ, क्या वो तुमसे प्रसन्न होगा? Offer it then to your governor. Would he be pleased with you? क्या वो तुम पे अनुग्रह करेगा? Would he accept you favorably? और उसके आगे ऐसा लिखा है। And further it says, उसके आगे ऐसा लिखा हुआ था कि परमेश्वर उनके जो उन्होंने बलिदान किया उससे प्रसन्न नहीं है। that God was not pleased with what they had offered. उसके 10वें वचन के आखिर में लिखा है, In verse 10 in the end it सेनाओं says, का यहोवा यह कहता है, the Lord of hosts says, मैं तुमसे कदापि प्रसन्न नहीं हूँ I have no pleasure in you, और तुम्हारे हाथ के भेंट ग्रहण नहीं करूंगा। and I will not accept an offering from सो your देखो hands. ये लोग परमेश्वर को भेंट चढ़ा रहे थे,
So here these people were offering something to God. इमेजिन अंधा भेंट परमेश्वर को चढ़ा रहे हैं। Just imagine a blind animal they were offering to God. ये अंधा हम बेच नहीं सकते, कोई खरीदेगा नहीं। If we sell that blind animal, nobody will buy it. We can't- लंगड़ा भेंट को कोई खरीदेगा नहीं तो प्रभु को चढ़ा देते हैं। A lame animal, nobody will buy it. So we said they तो sacrifice to प्रभु क्या God. बोलता है, तू ऐसा सब चीज मुझे दे रहा है और तू सोचता है कि मैं तेरे से प्रसन्न होऊंगा। So God says, you're giving all like these things to me. You think I'll be pleased with you? मैं तुझ पर अनुग्रह दिखाऊंगा। That I will show favor to you. तो प्रभु कहता है कि मैं तुझसे कभी भी प्रसन्न नहीं होऊंगा। God says, I will never be happy with you. सो बहुत जरूरी है ब्रदर्स एंड सिस्टर, हम जो कुछ भी करते हैं, So brothers and sisters, it's very important that whatever we do, अपना पैसा देते हैं या हम कुछ भी करते हैं प्रभु के लिए, अपना जीवन देते हैं, that we give our money or we give our life, whatever we do for God. तो क्या प्रभु देखता है? Does God see that? प्रभु देखता है। Yes, God sees हमने that. किस रीति से प्रभु को ये सब किया है। God also sees in what manner we are doing all these things. हम जो भी काम यहाँ करते हैं या जो भी काम प्रभु के लिए करते हैं, क्या आप सोचते हो कि प्रभु को उसके पीछे का इंटेंशन नहीं पता? Whatever we do in front for God, do you think God doesn't know the intention with which we are doing? परमेश्वर को हर चीज पता है कि हम आके यहाँ पर क्यों कर रहे हैं ये काम। God knows everything why we are doing anything in this church. क्यों आप यहाँ माइक लेके प्रचार कर रहे हो? Why you are taking the mic and क्यों यहाँ खड़ा रह speaking? के गीत गाते हो? Why do you stand here and sing? क्यों लोगों के सामने आप अच्छा दिखावा करते हो? Why do you put a nice show in front of people? सब कुछ परमेश्वर को पता है, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है। God knows everything, the intention behind all these activities. क्या हम लोगों के सामने दिखावा करने के लिए सारे चीज करते हैं? Do we do this to put up a show in front of people? परमेश्वर बोलेगा मैं ये सारे बातें जानता हूँ, God will say, I know all this. तू मुझे प्रसन्न करने के लिए यहाँ नहीं खड़े होता, You're not here to please me. तू लोगों को प्रसन्न करने के लिए यहाँ खड़े होता है। You're here to please the people. तो कई बार हमको बहुत जरूरी है समझना ब्रदर्स एंड सिस्टर, So sometimes it's very important for us to understand हमें this. चेयर उठा कर रखे या यहाँ झाड़ू मारे या कुछ भी प्रभु के लिए कर रहे हैं, उसके पीछे का लॉजिक या इंटेंशन हमारा क्या होता है। So whatever we do, whether we move a chair or if we sweep a small place, we should see what is the intention with which we are क्या हम doing कई it. बार सोचते हैं कि लोग भी वो देखें, Do we think, oh, people also should see this? लोग भी सोचे मैं भी कुछ करता हूँ प्रभु के लिए। So that the people should think that we are also doing something देखो for हमारे God. सबके अंदर ऐसा डिजायर तो आते रहता है, Maybe for all of us, this desire keeps coming. लेकिन बहुत जरूरी है कि हम जो कुछ भी करते हैं वो गुप्त में किया जाए। But it's not necessary that whatever we do it in secret. फरीसी लोग लोगों को दिखाने के लिए करते थे, The Pharisees did everything to show. put इसीलिए up a यीशु show. कहते हैं कि तू उनके समान मत बनो, So Jesus says, don't be like the वो जो Pharisees. करते हैं तुम, वो जो कहते हैं वो तुम करो, Whatever they teach and whatever they tell you, do that. लेकिन उनके समान मत बनो। But don't be like them. आपको पता है जो मरिया मगदलीन, Do you know Mary Magdalene? उसने कॉस्टली इत्र लाकर यीशु के पैर में फोड़ दिया। She brought a costly perfume and oil and broke it on कॉस्टली Jesus' feet. मतलब वो बहुत कॉस्टली था। Costly means it was very costly. सोचो उसने अपना शरीर बेच के कमाया हुआ पैसा उसने लाकर सब कुछ प्रभु के पैर में डाल दिया। Just imagine she had sold her own body and earned the money and bought this oil. देखो प्रभु का प्यार उसको प्राप्त हुआ तो ये सारा पैसा जिसके लिए उसने अपना शरीर भी बेचा उसके लिए वैल्यू नहीं था। So just imagine how much she loved God, that the money that she earned by selling her own body was not important जिस for चीज her. के लिए उसने जीवन भर अपना दे दिया था उसने प्रभु के सामने फेंक दिया Whatever she had given her whole life to, she just threw it in front of और वहां Jesus' पर feet. इस्करियोत जो यहूदा इस्करियोत कहता है अरे इतना कीमती चीज तूने वेस्ट कर दिया। And here Judas Iscariot says, oh, such a costly thing, you just wasted it. लेकिन उसने जो किया वो प्रेम से किया। But what Mary Magdalene did, she did out of love. उसने जो किया प्रभु के ऊपर उसका जो प्रेम था उसके लिए उसने किया। She did because she loved Jesus so much. सो ब्रदर्स एंड सिस्टर आप जो कुछ भी करते हो, So brothers and sisters, whatever you do, कोई ब्रदर कहता है या कोई ब्रदर देता है उसके लिए मत करो। don't do it because brother has said or because अरे वो brother has ब्रदर ने said. किया तो मुझे भी करना पड़ेगा, मत करो। Don't do it because that brother is doing, so I'll also do. Don't do. प्रभु के शिष्य लोग करते हैं उसके लिए मुझे करना है, मत करो। God's people are doing, so I will do. So don't do it like that. जो आप करना चाहते हो वो खुशी से प्रभु के लिए करो, आउट ऑफ लव। Do whatever you want to do, you do it out of joy and out of love. अगर आप खुद के प्रेम से प्रभु के लिए करोगे Out of your own love, if you do something for तो आप God, नहीं चाहोगे कि लोग भी देखे वो चीज। you will think, okay, people don't need to see that. आप नहीं चाहोगे कि मैं उसका प्रचार भी करूं। You will think, okay, I don't want to make a preaching out of that.
एक पिता अपने बच्चों के लिए अगर कुछ करेगा If a father does something for his child, और जाके ढिंडोरा पीटेगा, मैंने ये किया मेरे बच्चे के लिए, मैंने ये किया, ऐसा आप देखते हो क्या कभी? if he goes and tells around the whole place that I did this for my child, I did that for my child, have you seen that? नहीं, वो अपने प्यार से उनके लिए करता है। Because a father does out of love for his child. हम सब लोग अपने बच्चे को प्यार से स्कूल में डालते, अच्छा स्कूल देखते, सब प्यार से करते। क्या हम सबको जाके बोलते हैं क्या? We do things for a child, put them in a good school, give them good things out of love for a child. Do we go and tell तो everybody? जब हम परमेश्वर की सेवा के लिए करते तो हम क्यों चाहते हैं कि लोग उसको जाने? So when we do something for God's service, why do we want that other people should come to know about So it? बहुत जरूरी है ब्रदर्स एंड सिस्टर, हम जो कुछ भी प्रभु के लिए कर रहे हैं वो गुप्त में रहे। So brothers and sisters, it is important that whatever we do, let it be a secret. और मोस्टली वो हमारे भीतर का प्रभु के लिए प्यार से आउट, इट शुड बी आउट ऑफ लव। And whatever we do for God, it should be out of love that we have नहीं तो inside. सिर्फ एक रिलीजन होगा या धर्म हो जाएगा, जो सब लोग करते हैं हम भी कर रहे हैं। Otherwise, it will just become like a religion, like everyone else is doing, so I'll also do. सब लोग जाके कुछ चढ़ाते हैं, हम भी चढ़ाते हैं, जैसा हम पहले करते थे। So it will be like everyone is going and putting in front of God, so we'll also put. जैसे पहले मैं बांद्रा चर्च में जाता था, सब लोग मदर मैरी के लिए क्या क्या कुछ लेके जाते, हम लोग क्या उठाना है, हाँ ये लेके जाओ, तो उठा के हम भी लेके जाके चढ़ाते थे। Like in the Bandra church, to put in front of Mother Mary, we'll put लोग this. क्या करते हैं वो देखकर हम भी करने जाते हैं, We used to see what other people are doing, and we लेकिन used to do that. परमेश्वर वो देखता है कि जो हम आउट ऑफ लव करते हैं। So God sees what we do out of love. सो ब्रदर्स एंड सिस्टर, बहुत एनकरेजिंग वर्ड था कि हम जो कुछ भी प्रभु के लिए करें वो हमारे भीतर प्यार से प्रभु के लिए हम कर पाए। So it was a very encouraging word that whatever we do, we should do out of love. यीशु for ने God. कहा जिसके ज्यादा पाप क्षमा हुए वो मुझसे ज्यादा प्यार करेगा। Jesus said, whoever has been forgiven much will love much. और बहुत अच्छा एक वचन है लूका अध्याय 16:10 में, वहां पर लिखा है जो छोटे बातों में विश्वास योग्य रहेगा वो बहुतों का अधिकारी होगा। In Luke 16:10, it says, whoever is faithful in little things हम सब कुछ बड़ा काम करना चाहते प्रभु के लिए, will be made ruler over much. So we all want to do big things for बहुत God. करना चाहते प्रभु के लिए, We want to do lots for God. लेकिन प्रभु का एक्सपेक्टेशन है ही नहीं वो। But that is not what God expects us for. प्रभु क्या चाहता है? But what does God expect us? छोटा जो तेरे पास है उसमें विश्वास योग्य रहे। Whatever little you have, do it सोचो faithfully. मेरे पास छोटा चीज क्या है, Think what is a small thing that you उसमें have. तू विश्वास योग्य रहे, Do that faithfully. तो बाइबल कहता है तू बहुतों का अधिकारी होगा। Then you will be made ruler over much. बहुत बार मैं बोलने के लिए कभी भी आगे नहीं आता है। Many times I am not able to come in front and जब speak मैं वचन सुनता हूँ when I hear the word. और परमेश्वर हमारे कानों को खोल देता है। But God opens up my ears. जाओ आप कुछ बोलो जाओ, That, और सब कुछ ऐसा डिसीजन बता देता है परमेश्वर। so God speaks to me to go and share, and God clearly defines everything for me. जसो ब्रदर ने जो आज वचन लाया, Like like the message that God brother brought to us. आलस जो है, आदत है, वो परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं है। Laziness is something God totally dislikes. मैं आज दो तीन बातें ऐसे बताता हूँ। मैं बहुत सुसमाचार सुनाने का जो भी कलीसिया में था। I would like to share used to like to share the gospel in whichever church I was in. परमेश्वर बोलता है दिया तो दिया, तुम दोगे तो पाओगे। God says if you give, then you will receive. लेकिन आप जब सुसमाचार अगर किसी को देते हैं तो आप बहुत कुछ पाओगे। But when you give, share the gospel to someone, you will receive lots more. परमेश्वर ने अगर परमेश्वर को आपको परखना है, If God wants to test you, अगर परमेश्वर के कार्य को आपको देखना है, and if you want to see God's work, एक दान का भी क्षेत्र है। one area is the area of giving. परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करता है वो आपको मालूम पड़ जाएगा। Then you will know how much God loves you. और एक क्षेत्र है सुसमाचार। And the other area is of sharing the gospel. अगर किसी की एक जान बचाओगे, If you are helpful in saving one person's life, आप बहुत कुछ पाओगे। you will get a lot. आपके परिवार पर हाथ रहेगा आपका, You will receive. परमेश्वर का।
you will receive many things, and God's hand will be on your family क्योंकि आपने किसी की जान बचाई। because you have helped in saving one person's life. अगर मैं किसी के लिए प्रार्थना करता हूँ, And if I pray for someone, अगर मैं उसको देखता हूँ, and if I take care of मैं them, बताता नहीं जाके उनको कि मैंने आपके लिए प्रार्थना की है। and if I pray for someone and I see them, I don't go and tell them I prayed for you. उसके आनंद को मैं पसंद करता हूँ, उसके आनंद को मैं पसंद, खुशी को मैं पसंद करता हूँ। I really like when they'll be happy. यही परमेश्वर का गिफ्ट है आपके लिए। This is the gift that God has given for you. थैंक यू। Thank you. Sowing the right sacrifice. और एक अच्छे बलिदान को बोना। The word of God says, whatever you sow, you shall reap. और परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कुछ भी तुम बोओगे वही तुम काटोगे। For example, if you see a farmer, unless he doesn't sow, he won't reap also. उदाहरण के लिए यदि आप एक खेती करने वाले व्यक्ति को, किसान को देखते हैं, तो हम पाते हैं कि जब तक वो बोएगा नहीं, उसे काटने नहीं मिलेगा। A Christian life is like a farmer. और हमारा जो मसीह जीवन है वह एक किसान के समान है। If we don't sow, we shall not reap also. और इस खेती में यदि हम बोएंगे नहीं तो हम काट नहीं पाएंगे। If a farmer sows a bad seed, your crop will be bad. और यदि एक किसान अपने खेत में बुरे बीज, गंदे बीज बो देता है तो उसे अच्छी फसल नहीं काटने मिलेगी। But maybe your seed is good, but you're sowing in the wrong land, a bad land, still your crop will be. और यह भी संभव है कि आपके बीज जो है वो अच्छे हैं, लेकिन आप जिस भूमि में बो रहे हैं उस बीज को, वह भूमि खराब हो सकती है, तब भी आपका जो कटनी होगा वह अच्छा नहीं होगा। So your seed and your ground should be both good. तो हमारे लिए चाहिए कि हमारा जो बीज है और हमारा जो भूमि है, जमीन होगा, वह दोनों ही अच्छे हों। A Christian life, how we live it, how we sacrifice it, in what intention that we do it. हमारा मसीह It जीवन matters. हम कैसे उसको जीते हैं, हम उसमें कैसे बलिदान को चढ़ाते हैं, हम किस प्रकार से हमें मसीह जीवन में आगे बढ़ते हैं, ये सारी बातें उसमें मायने रखती है। If we speak about giving, it is necessary, I would say. और विशेष करके जब देने के विषय में जब बात आती है तो मैं जरूर कहूंगा यह आवश्यक है। The reason why I say it's necessary, because everything comes at a cost. कारण यह है कि क्यों मैं आपको कहता हूँ कि यह बात जरूरी है, क्योंकि कुछ भी आप जब देते हैं या आपको उसके लिए कीमत चुकानी होती है, मूल्य चुकाना पड़ता है। That life that we live in Christian, as a believer, it came with a cost. और एक विश्वासी बनकर, एक मसीह होकर जिस जीवन को हम जी रहे हैं, वह जीवन एक कीमत चुकाने पर है। And what was that cross? It was the cross. और वह कीमत क्या है? वह कीमत क्रूस है। The sacrifice of Jesus. यीशु मसीह का बलिदान। Each and every penny that was paid was according not by silver or gold, but it was by his blood. और एक एक कौड़ी जो चुकाई गई, एक एक पैनी जो चुकाया गया, वह कोई सोना और चांदी के सिक्के नहीं, परंतु यीशु मसीह का देह, यीशु मसीह का लहू था। So this life that we live in, how are we sacrificing it? तो वह जीवन जिसको हम जी रहे हैं, हम किस प्रकार से इस जीवन को बलिदान चढ़ाते हैं? How are we sacrificing our life to the kingdom of God? और कैसे हम परमेश्वर के राज्य के निमित्त हमारे इस जीवन को बलिदान करते हैं? How are we giving our life as a sacrifice for the kingdom of God? कि हमारे इस जीवन को परमेश्वर के राज्य के लिए एक बलिदान के रूप में हम कैसे देते हैं? What kind of intentions, what kind of heart, what kind of mind it is? और किस प्रकार का हमारा उद्देश्य, मन का भाव जो होता है, That's important, यह बात मायने रखती है। because a true heart and a true mind, unless it is not holy, pure and righteous, is going to be a bad seed. क्योंकि एक शुद्ध मन, शुद्ध जो हृदय होता है, यदि उसका वह धार्मिकता का हृदय, वह प्रेम का, शांति का हृदय नहीं, तो यह कोई भी बात उसमें मायने नहीं रखती, सब व्यर्थ है। Your bitterness, your hatred, your unforgiveness, these are the bad seeds. और जो कड़वाहट की भावना होती है, जो बैर की भावना या जलन की भावना औरों के प्रति रखते हैं, ये सारे वे बुरे बीज होते हैं। This ground, this church, CFC, where we call, it's a ground where we come to sow our seeds.
और यह कलीसिया CFC जिसमें हम हैं, यह एक हमारे लिए भूमि के समान है जहाँ पर हम अपने बीज को आकर बोते हैं। In what intentions are we sowing it and how are we sowing it? और कैसे और किस उद्देश्य, किस मन के भाव से हम हमारे बीजों को इसमें लगाते हैं। What kind of sacrifice do we bring when we come? और जब हम आते हैं तो किस प्रकार का बलिदान हम लेकर आते हैं। I give an example of a husband and wife. That's in Acts 5, verse 1 to 4. See the intentions of these two. और प्रेरितों के काम के अध्याय 5 में एक पति पत्नी दंपति का उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ कि किस भाव से वो परमेश्वर के प्रति बलिदान को लेकर आते हैं कलीसिया में। Chapter 5, verse 1 to 4. और हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम अध्याय 5 वचन 1 से लेकर 4 तक। हनन्याह नामक एक मनुष्य, उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची, उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी। उसका एक भाग लेकर प्रेरितों के पांवों के आगे रख दिया। पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े? जब तक वह तेरे पास रही क्या तेरी न थी, और जब भी गई तो क्या तेरे वश में न थी? तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। This life of us, who does it belong to? और यह जीवन किससे संबंध रखता है? Does this life belong to us? क्या यह जीवन हमसे संबंध रखता है Or it belongs to the Lord? या प्रभु से संबंध रखता है? If it belongs to the Lord, then how are we supposed to give this life? और यदि यह जीवन जो हमारा जीवन है यह प्रभु से संबंध रखता है तो हम हमारे लिए जरूरी है कि हम किस प्रकार से जीवन को रखते हैं और चलाते हैं। What is that we are keeping something that's for us, for ourselves? या हम अपने जीवन में से कुछ ऐसी कुछ मुख्य बातें हैं जिसे हम अपने आप के लिए रख छोड़ते हैं पीछे। Isn't Satan in us? क्या शैतान हमारे अंदर नहीं? As the word says, जैसे कि वचन कहता है, because the Satan that works in us will always won't allow us to be a good sacrifice to the Lord. क्योंकि वह शैतान हमेशा हमारे भीतर इस बात के लिए प्रयत्न करता रहेगा, कोशिश करेगा कि हम पूरी तरह से समर्पित होकर प्रभु को बलिदान न चढ़ाने पाए। The reason why I'm saying this because I want to say the life that we live is not the life that we live of our own. We live a life that's of Christ, where Christ dwells in us. और क्यों मैं आप सभी से ऐसे कह रहा हूं, क्योंकि यह जीवन जिसे हम पाए हैं और जिसको हम जीते हैं यह हमारा अपना नहीं परंतु प्रभु का दिया हुआ जीवन है। You can sacrifice it 100% to the Lord, or you can keep it as you wish. आपके लिए चाहिए कि आप या तो 100% पूरे रीति से प्रभु को समर्पित कर सकते हैं इस जीवन को, या इसमें से आप जैसे मन चाहे वैसे कर सकते हैं। So now it depends that what kind of sacrifice are we bringing to our, तो यह इस पर निर्भर करता है कि आप किस प्रकार का बलिदान प्रभु के सामने लाते हैं and how are we going to sacrifice our life? और कैसे हम अपने जीवन को बलिदान चढ़ाएंगे। We should understand that what is the right sacrifice. और हम सभी को समझना होगा कि वह सही बलिदान कौन सा है। Giving of financially, giving earthly things is not, it's just a part of a sacrifice. और हमारे आर्थिक संपत्ति में से कुछ प्रभु के लिए देना या हमारे भौतिक जो सांसारिक बातें होती है उसमें से कुछ बलिदान के रूप में दे देना, यह सारी बातें उसमें आखिर में शामिल होती है। But the true life is your righteousness, your holiness, your faithfulness and your obedience to God. लेकिन वो वास्तव में बलिदान वह आपका जीवन होता है जिसमें आप धार्मिकता का जीवन बिताते हैं, परमेश्वर के सम्मुख विश्वास योग्य रहते हैं, In which God is pleased in. जिसमें प्रभु प्रसन्न रहते हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु मेरे जीवन में हर वक्त प्रभु मुझे देखता रहता है या मेरा प्रार्थना को सुनता रहता है। I want to thank God that all the time God is watching over me and is listening to my prayers. मैं 2 हफ्ता पहला मेरे को थायराइड का बीमारी है। 2 हफ्ता पहला मेरा गाल का नीचे बहुत दर्द कर रहा था। Actually, I have a thyroid problem, and 2 weeks back I was having severe pain below my cheek. संडे रात से मंडे सुबह तक मेरे को बहुत दर्द कर रहा था। From Sunday night to Monday morning, it was paining severely. I was having severe pain. मैं
ऐसा बहुत दवा बाम सब लगा के सो के रात भर मेरे को बहुत ही मुझे बहुत दर्द कर रहा था। मैं किसी को कुछ बोली नहीं मगर मेरे को बहुत दर्द कर रहा था। Whole night I was applying some ointment, some balm, but I couldn't tell anybody, but it was paining very badly for me. सुबह मैं ऐसे प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु मुझे सहने नहीं हो रहा है, इतना मुझे दर्द कर रहा है, प्रभु मेरा ये दर्द को निकाल दो, मुझे सहने नहीं हो रहे, इतना दर्द है। So in the morning I prayed, Father, I'm not able to bear this pain. It's paining terribly for me. Please take away this pain from me. जैसे मैं प्रार्थना करके मेरे को 2 मिनट भी नहीं हुआ कि मेरा दर्द निकल गया, इसके लिए प्रभु का मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। As soon as I prayed, in less than 2 minutes, the pain disappeared, and for this I want to thank God 1,000 times. Hardship, it means we all were so badly sick. और बुरे परिस्थिति का अर्थ मेरा कहने का यह था, हम लोग इतने बुरे तरह से बीमार हो गए थे। We had never experienced this. और इतने भयानक बातों को हमने कभी अपने जीवन में अनुभव नहीं किया था। None of us had any clue what's happening. हम में से किसी को भी कुछ पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा था, Because all 5 were lying on the bed. क्योंकि हम 5 जन बिस्तर पर पड़े थे। Children were missing their school. और मेरे बच्चे अपने स्कूल में नहीं जा पाए। We couldn't speak. We couldn't speak. और हम लोग बात भी नहीं कर पा रहे थे। We couldn't move. और हम हिल भी नहीं पा रहे थे। Like as if, like we were like dead bodies, I would say. और जैसा कि हम एक मरा हुआ शरीर के समान पड़े हुए थे। The entire whole week we were like that. पूरा सप्ताह ऐसा ही हमारा निकल गया। But I thank the Lord. लेकिन मैं प्रभु का आभारी हूँ। As all 5 were taken bad at the same time. और मेरे से 5 की यही अवस्था थी उस समय। But God raised all 5 us up again. लेकिन परमेश्वर ने हम 5 को फिर खड़ा किया। He strengthened us. उन्होंने हमें सामर्थ्य प्रदान की। And he helped us in this time. और ऐसे समय में उन्होंने हमारी सहायता की। And he showed. और उसने बताया how deep the valley of the shadow of death may be. और कितना ही गहरा उस अंधकार जो मृत्यु का अंधकार होगा। As the word says, I will not leave you orphan, nor will I forsake you. लेकिन वचन कहता है, मैं तुझे कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा, ना कभी तुझे त्यागूंगा। And we experienced this. और हमने अनुभव किया उन दिनों में। Then I realized that whatever things happen in our life is for a reason. और तभी मैंने इस बात को सोचा, उस पर विचार किया कि जो कुछ भी हमारे जीवन में होता है उसके पीछे एक कारण होता है। Because God wants to say that I am in control of everything. क्योंकि परमेश्वर ये बताना चाहता है कि हर चीज पर नियंत्रण परमेश्वर का है। We couldn't come last week. हम पिछले सप्ताह में आ नहीं पाए थे। But I thank the Lord that we were able to come today. लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि आज हमें आने का अवसर प्रभु ने दिया। And I thank for entire church for even praying for us. और मैं पूरे कलीसिया का भी आभारी हूँ कि उन्होंने सबने मिलकर हमारे लिए प्रार्थना की। And I give all the glory and honor to our Lord. मैं स्तुति, गौरव, प्रशंसा केवल परमेश्वर को देता हूँ। Amen. आमीन।